हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਤਾਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਜਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਆਈਫੋਨ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕਈ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਤਲਬ ਵਿਕ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਖ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਨ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ कि भाई ये चीज़ें आती जाती रहेंगी। वो आईफोन है, हर एक साल वो नया आता है, हर एक साल उसका अपडेट आता है। जो पुराना वाला होता है उसको कोई पूछता नहीं है। अगर वो आईफोन उसके पास आ भी जाता, जो कि उसके पेरेंट्स उसे कह भी रहे थे कि हम तुझे लेकर दे देंगे, तो वो 1 साल में पुराना हो जाता, अगला अपडेट आता, फिर उसको पुराने को कोई पूछता नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से उसका अपडेट आता, न्यू आता। फिर वो तो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना हो गया, और वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है उसका चाह। फिर वो निकल जाता है। अगले साल फिर न्यू आएगा, फिर न्यू। तो ये चीज़ें अगर वो सोचता, और दुनिया में कितनी ही चीज़ें थी उसके लिए जो वो छोड़ कर गया, जो वो
सबसे पहले ऐसी जो जनरेशन है वो प्यार प्यूर इनके लिए मायने नहीं रखता। क्वालिटी इनके लिए वो वाली जो हमें पता है वो इनके लिए मायने नहीं रखती। कितनी और चीज़ें हैं जो वो जिस चीज़ का वो लुत्फ़ उठा सकता था, जिस चीज़ के वो मज़े कह लो कि ट्रैवलिंग होगी, इतनी अच्छी जगहें हैं, वो एंजॉय कर सकता था लाइफ में, अपनी माँ बाप की सेवा कर सकता था, कितने एक्सपीरियंस वो कलेक्ट कर सकता था इस लाइफ में, जो कि उसने सिर्फ एक आईफोन के पीछे छोड़ दिया। कितनी चीज़ें हैं इस दुनिया में, फूड है, खाना पीना सबको पसंद है, अलग अलग तरह के फूड टेस्ट करता, उसको कितना एक्सपीरियंस उसका वेट कर रहा था, उसने वो नहीं देखा कि भाई एक आईफोन के पीछे आपने अपनी जान ले ली, अपने माँ बाप की भी जान ले ली। ऐसा बेवकूफ़ बच्चा, उसको तभी गालियाँ उसको बहुत पड़ी। तो इस तरीके से उसने नहीं सोचा। अगर उसको ये कोई समझाने वाला होता, कितना आगे उसकी हैप्पी मैरिज लाइफ भी होती, उसमें भी उसको सुख मिलना था। कितने सुख हैं इस संसार में। एक आईफोन के पीछे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जड़ियाँ चीज़ां हैगियां ने, ये संतमत विच भी समझाई जांदियां ने कि ये मैटीरियलिस्टिक चीज़ां विच, ये दुनियावी चीज़ां विच ना पवो। ये सब चीज़ां आउंदी जांदियां रहिंदियां ने। सतगुरु सब कुछ समझाउंदे हुंदे ने। ये सब कईयां दी मुहब्बत विकरी आ, कईयां नूं प्यार दे नाल कुछ है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ये सब चीज़ां अजकल दी जनरेशन नहीं समझदी। बाबा जी ये सब गल्लां कहंदे आ कि एक बार भी क्वेश्चन आंसर विच बाबा जी ने कहा सी कि रिलेशनशिप दे विच कदे भी ये पैसे नूं ना आउण देवो। कदे भी बंदा सुखी नहीं हो सकदा, मन की शांति कदे भी नहीं मिल सकती। उस मुंडे नाल गल हो रही सी, उन्हें हीर रांझे वाली जो कहानी वो भी छेड़ी। मैं कहा यार वो तो तू गल्ले ना कर, वो बहुत पुरानियां, अज दी पीढ़ी विच, अज दे टाइम विच वो सब चीज़ सानू नहीं मिलूगी। हीर रांझे वाली, मिर्ज़ा साहिबा वाली वो चीज़ तो भुल्ले जा तू। अज की डेट विच वो चीज़ नहीं मिल सकती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ने उस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ रखे ने। और इतिहास में, दुनिया में कितने ही एग्ज़ाम्पल हैं हमारे सामने कि बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, या जो लड़की है या लड़का है, उसको उनको पैसा तो मिल गया लेकिन वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहते थे। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है, ये प्रूफ है, विटनेस है कि हम सबकी आंखों के सामने है कि पैसा वो चीज़ नहीं दे सकता। बाबा जी फरमाते हैं ना कि जो पैसा है इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन वो चीज़ मन की शांति, वो पीस, मन का पीस, मन की शांति, वो पैसे से कभी आ ही नहीं सकती। फिर उसके बाद प्रेम, मोहब्बत, वो क्वालिटी, वो पैसे से कभी आ ही नहीं सकती। ज़िंदगी आसान बन जाएगी, मन की शांति कभी आ नहीं सकती। बाबा जी ये फरमाते हैं, संत महात्मा हमारे दरमियान यही चीज़ फरमाते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ, कितना दर्दनाक, इतनी ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगा दी, माँ बाप को भी वो ले डूबा, दुनिया देखते रह गई। पुलिस भी आई थी उसको रोकने के लिए, नीचे जाले भी लगाए गए थे, पर वो बेवकूफ़ अपनी जगह बार बार बदल रहा था। ये देखकर उसको बोल भी दिया था कि तू आ जा भाई, तुझे लेकर दे देंगे आईफोन, तब भी वो नहीं आया। अपने बाप को भी साथ ले गया, अपनी माँ को भी साथ ले गया। तो जो यंग जनरेशन है, जो अभी न्यू आ रही है, इन सब चीज़ों का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दें। अब अगर फ़ोन की बात करें तो दोस्तों देख लो, मेरे पास सैमसंग S22 अल्ट्रा है।
S22 जो कि 2022 में आया था, फिर उसके बाद 2023 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया। मैंने सब देखे, थोड़ा बहुत अंतर था। मुझे ज़रूरत ही नहीं है फ़ोन की, मेरा काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है और ये फर्स्ट ए क्लास कंडीशन में फ़ोन है। और आईफ़ोन और ये सैमसंग गैलेक्सी, ये फ़ोन वर्ल्ड के बेस्ट माने जाते हैं। अगर इसको लेने के बावजूद भी मैं सब्र ना करूं, मैं ये सोचता रहूं कि हर साल न्यू लूं, तो भाई इसमें मुझे कल को सियाना कौन कहेगा। और जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, तो ये होती है मैच्योरिटी, तकाज़ा। बाबा जी फरमाते हैं ना कि उम्र का तकाज़ा ये होता है, ये होती है सियानप। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है भाई आपको। अब हमने देखा होगा कि सभी न्यू से न्यू फ़ोन हर साल वो लेते हैं, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। जितनी ज़रूरत है, बाबा जी फरमाते हैं ना, अब मैंने हर एक शोरूम में जाके देखा, हर साल देखा, S23 भी देखा, 24 भी देखा, 25 भी देखा, 26 भी देख लिया। सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ये कंपनीज करती हैं अपडेट पैसा कमाने के लिए, मुनाफा, रेवेन्यू की हाइप वो देते हैं कि न्यू फ़ोन आया है, न्यू फ़ोन आया है, इसका अपडेट आया है, वो लो वो लो। चीज़ सारी सेम है, कैमरा बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इन सब चीज़ों का शौक़ भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहता है। अब आप एक कार लो, ये चीज़ें हम ये इसलिए संत महात्मा भी समझाते हैं शॉर्ट में, ताकि नई जनरेशन इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में, ज़्यादा प्रभाव में ना आए और उनको नुकसान ना होए। इन सब चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं ना, काफ़ी आपने देखा होगा बच्चे या यंग, जो ज़्यादा यंग हैं, यंग जनरेशन। जैसे आप एक नई कार खरीदो, कोई भी है, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, अगले साल उसका अपडेट आ जाएगा। या आप ही का दोस्त या आपकी कोई कलीग या कोई भी आपके जान पहचान में अगर उससे ज़्यादा महंगी ले आया, तो आपके अंदर वो फीलिंग आ जाए कि यार ये तो हमसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी लेके आ गया। तो एक सत्संगी बंदे को समझाया जाता है कि इन सब चीज़ों में पड़ो ही ना, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप वो गाड़ी लेके आ जाओ 20 लाख की, आपका दोस्त कोई सोसाइटी में 30 लाख की ले आया, या वो 1 साल तक पुरानी होगी और नई-नई आ गई, तो मन में वो चीज़ें आ सकती हैं आपके। आ जाता है कइयों के मन में कि यार वो तो मुझसे मुझसे बड़ी लेकर आ गया, फिर और बड़ी लेकर आ गया, फिर आप वो लेकर आए, फिर और बड़ी। तो वो इसका उस सोच के हिसाब से तो वो फिर गाड़ी आपकी बेकार हो गई, फिर वो खुशी तो नहीं आई, वही बात हो गई फिर। पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, खुशी फिर भी नहीं है। तो बात यहाँ पे सिर्फ आइडियोलॉजी की है, हमारी सोच की है, हमारी थिंकिंग की है। अगर हम संत महात्मा के हिसाब से उस चीज़ के साथ चलें, तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान होगा ना, चाहे जैसा भी हो, हम इतने ज़्यादा खुश होंगे ना, वो चीज़ समझाई नहीं जा सकती। और हम तो सत्संगी हैं, उस नाम की कमाई में इतना रस है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि बंदे को अपनी शादी की भी खुशी उतनी नहीं होती। अगर वो रस आपको मिल गया, तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, वो अंदर ऐसी चीज़ है। तो ये चीज़ें हम समझते नहीं हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट करें, सब्र आ जाए, संतोष आ जाए, कंटेंटमेंट आ जाए, ज़रूरतें ही हमारी इतनी कम हो जाएं, इस चीज़ को हम अगर थोड़ा गौर से समझें, संत महात्माओं की ध्यान को, बातों को अमल करें और फॉलो करें, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हम खुद देखेंगे